خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور پرفضل نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کے خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی ہمیشہ خداوند کو مبارک کہیں اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے لیے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا، تو آئیے خداوند کی پرستش میں یہ گیت سنیں۔ یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا پاون، یسوع تیرا نام ہے کتنا سندر، یسوع تیرا نام ہے کتنا
جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ گیت؟ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی اس پرستش کے وسیلہ سے آپ نے خوب برکت پائی ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے انکل ڈیوڈ اور پنکی کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں آج کی کہانی سنائیں گے۔ گڈ مارننگ انکل ڈیوڈ۔ ویری گڈ مارننگ پنکی بیٹا، اور ناظرین، انکل ڈیوڈ اور پنکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں آداب، اور آج کی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انکل ڈیوڈ، آج آپ مجھے اور ناظرین کو بائبل مقدس میں سے کون سی کہانی سنا رہے ہیں؟ بیٹا جی، آج میں آپ کو داؤد کے بیٹے سلیمان کے بارے میں، جس نے ہیکل تعمیر کروائی، بتاؤں گا۔ اچھا انکل، ضرور بتائیں، لیکن انکل داؤد نے وہ ہیکل تعمیر کیوں نہ کروائی؟ حالانکہ خدا تو داؤد سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے مسح کرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے میرے دل کے موافق بندہ مل گیا۔ جی پنکی بیٹا، آپ نے درست کہا ہے۔ دراصل داؤد وہ ہیکل بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اسے ایسا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن انکل وہ کیوں؟ پنکی بیٹا، جب داؤد بادشاہ نے ہیکل بنوانا چاہی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو اپنی بادشاہی کے دوران جنگیں کرتا رہا ہے، اس لیے میرا گھر تو نہ بنا، بلکہ یہ کام تیرا بیٹا سلیمان کرے گا، وہی میرے لیے گھر تعمیر کرائے گا۔ بالکل ٹھیک انکل، ذرا تفصیل سے بتائیں اس بارے میں۔ بیٹا جی، بادشاہ بننے کے بعد سلیمان نے سور کے بادشاہ ہیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند کے لیے گھر بنوا نہ سکا، کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہی ہوتی رہیں۔ اب میں اپنے خداوند کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ہیرام نے کیا جواب دیا سلیمان بادشاہ کو؟ اس نے سلیمان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ تو انکل یہ ہیکل کافی بڑی ہوگی نا؟ جی پنکی بیٹا، جو ہیکل کی عمارت سلیمان نے تعمیر کروائی، اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اچھا انکل، اس کے علاوہ ہیکل کے بارے میں مزید بتائیں۔ ہیکل کے اندر ایک بڑا کمرہ یعنی پاک ترین مقام بنایا، جس کے 3 اطراف 30 فٹ کی تھیں، اور اس پر خالص سونا منڈا گیا، اور اس کے اندر عہد کا صندوق رکھا گیا تھا۔ عہد کا صندوق؟ انکل اس عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ بیٹا جی، عہد کے صندوق کے اندر 10 احکام کی 2 لوہیں تھیں۔ انکل یہ لوہیں کیا تھی؟ بیٹا یہ وہ 10 احکام تھے جن کو خدا تعالیٰ نے کوہ سینا پر اپنے ہاتھ سے لکھا اور موسیٰ کو دیں، تاکہ بنی اسرائیل اپنی زندگیاں ان احکام کے مطابق بسر کریں۔ ٹھیک انکل، لیکن یہ ہیکل کتنے سالوں میں تعمیر ہوئی؟ بیٹا جی، یہ عظیم الشان ہیکل کو بنانے کے لیے 7 سال لگے۔ اچھا تو پھر؟ بیٹا جی، جب سلیمان نے ہیکل کی تعمیر ختم کر لی تو اس نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کو جمع کیا تاکہ کاہن عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ اور بیٹا جی، جب کاہن پاک ترین مقام میں صندوق رکھ کر باہر نکلے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا۔ واہ انکل، پھر؟ تب سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو۔ یوں سلیمان بادشاہ نے اور سب اسرائیل نے خدا کا گھر مخصوص کیا، اور یہ جشن
14 दिन तक जारी रहा। अंकल, ये तो वाकई बहुत बड़ी हैकल थी जो कि सुलेमान बादशाह ने तामीर करवाई, जिसका इतना बड़ा जश्न मनाया गया। जी पिंकी बेटा, बनी इसराइल इस हैकल की तामीर पर बहुत खुश और मसरूर थे। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने अंकल डेविड और पिंकी से हमारी आज की कहानी सुनी और खुदा के कलाम से मुस्तफ़िद हुए। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इसमें हम सीखेंगे कि इब्लीस, दुनिया और हमारी गुनाह आलूदा फितरत किस तरह लगातार कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर खुदा की मर्जी को पूरा होने से रोकें। हमारे दरमियान खुदा की मर्जी कैसे पूरी हो सकती है, और फिर हम तीसरी दरख्वास्त में क्या दुआ करते हैं। आइए मज़ीद सीखें। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे तीसरी दरख्वास्त के बारे में, और वो है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और इसमें हम सीखेंगे इब्लीस, दुनिया और हमारी गुनाह आलूदा फितरत यानी कि नफसानी ख्वाहिशात किस तरह लगातार कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर खुदा की मर्ज़ी को पूरा होने से रोकें। और इसके बारे में जानने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। पैदाइश 3 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत। इब्लीस ने आदम और हवा को खुदा के कलाम के बारे में शक में डालकर गुनाह करने पर उकसाया। 2 कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 3 आयत। लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की रोशनी उन पर ना पड़े। 1 यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। 1 पतरस 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा इब्लीस खुदा की मर्जी को पूरा होने से रोकने के लिए लोगों को खुदा के कलाम से दूर ले जाता है ताकि वो बेईमानी और गुनाह में जिंदगी गुजारें। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से 1 यूहन्ना 2 बाब और उसकी 15वीं व 16वीं आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। लूका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। लूका 22वां बाब और उसकी 54 आयत से 61 आयत। पतरस को मसीह के दुश्मनों के खौफ ने यीशु से इनकार की तरफ उकसाया। 1 कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा लोग और दुनिया का माल खुदा की मर्जी को पूरा होने में रुकावट का बाइस उस वक्त बनते हैं जब वो उनको यीशु को नजरअंदाज करने, भूल जाने और उसका इनकार करने की तरफ माइल करते हैं। और इसके बारे में मजीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से रोमी 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत। जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। रोमियो 7वां बाब और उसकी 19वीं व 25वीं आयत। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। मैं जिस्म से गुनाह की शरीर का महकूम हूँ। गलतियों 5वां बाब और उसकी 17वीं व 19वीं आयत से 21वीं आयत। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें,
बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा सब लोगों की गुनाह की फितरत यानी कि नफसानी ख्वाहिशात खुदा की मर्ज़ी को पूरा होने से रोकती है जब वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और गुनाह में लज्जत की हौसला अफजाई करती है। और मज़ीद जानते हैं हमारे दरमियान खुदा की मर्ज़ी कैसे पूरी हो सकती है, और इसके बारे में जानने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाह को मिटाए। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33वीं आयत। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। रोमियो 6 बाब और उसकी 6ठी आयत। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हो गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा की मर्जी हमारे दरमियान उस वक़्त पूरी हो सकती है जब खुदा हर एक इंसानी मंसूबा और शैतानी मकसद दुनिया और हमारी गुनाह-आलूदा फितरत को तोड़ता और शिकस्त देता है। आए खुदावंद के कलाम में से इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। याकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। अपने आप को ताबे करो खुदा के, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर उसका मुकाबला करो। गलतियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा हर तरह के फजल का चश्मा करेगा तुम्हें कामल और कायम और मजबूत। इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत। ईमान में कायम रहने का एक ही रास्ता है कि जब हमने सब हथियार पहन लिए तो ये वो ताकत है जो खुदा हमें मुहैया करता है। पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 5वीं आयत। तुम जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने के लिए तैयार है हिफाजत किए जाते हो। हमने आज के कलाम में से सीखा खुदा की मर्जी सिर्फ उस वक्त पूरी हो सकती है जब खुदा हमारी जिंदगी में हमें मजबूत करता और उसके कलाम और ईमान में कायम रखता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बाकायदगी से और नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी तमाम दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करती है, और वह जिंदा खुदावंद दुआओं का जवाब भी देता है। मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हों, बल्कि अपनी दरख्वास्तें और इल्तिजाएं इसी तरह से खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करते रहें। वो यहोवा यरी वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती राय और मशवराजात हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। अपने कीमती मशवराजात और अपनी राय आप हमें इस पता पर इरसाल कर सकते हैं: कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।